अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। हम जैसे कि आपको पता है हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने सेल यूनिट 1 जो है कंप्लीट किया। यूनिट 2 जो है टिश्यू, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। अब इसका हमारा तीसरा यूनिट जो है वो बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी जो है उस पर हम थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे आपको समझाने में, आपको पढ़ाने में। तो मुझे उम्मीद है आप भी इंशाल्लाह अच्छी तरह से इसको पढ़ोगे। तो जहाँ पर आपको क्वेश्चन रेज़ करना है वो आप बता सकते हैं, वो आप लिख के भी भेज सकते हैं। तो इन दो का जो आपको असाइनमेंट मिला है वो भी कीजिएगा। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो बायोडाइवर्सिटी का है। तो ये बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, टर्म जो है इसका इसके अगर हम इसको डिवाइड करेंगे दो हिस्सों में, बायो और डाइवर्सिटी। Diversity means variety, difference, division, and bio means life. Difference in the variety in the life. Variety in the life, there are number of species on this universe, on this planet, but they differ from each other. There is a division among them. तो इस बायोडाइवर्सिटी टर्म को कॉइन किया था W.G. रोजन ने 1986 में। तो बायोडाइवर्सिटी मीन्स वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम ऑल सोर्सेज। सोर्सेज क्या हैं आपको पता है, जो एनिमल लैंड पे रहते हैं टर्स्टाइल जिनको हम बोलते हैं, मैन एक्वेटिक जो पानी में रहते हैं, या अदर इकोसिस्टम से जितने भी हैं। सो वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स that live in a particular area, plants, animals, microorganisms, birds, that form a biodiversity. Living organisms, aquatic है, terrestrial है, aerial है, ठीक। तो as we know, there are number of species on the universe. बहुत सारे हैं प्लांट्स जिनको हम फ्लोरा बोलते हैं, फाना हैं, एनिमल्स हैं, मोर देन 1 मिलियन स्पीशीज ऑफ एनिमल्स। लेकिन among them 500,000 plant species described and several more are to be discovered yet. Living organisms vary considerably in their form, structure, and mode of life cycle. Every organism is unique. This uniqueness is due to biodiversity of life forms. जैसे कि हमें पता है फाना फ्लोरा यानी कि जिसको हम बायोटा बोलते हैं, ऑफ फॉरेस्ट, माउंटेन, डेजर्ट एटसेट्रा आर स्टिल अनएक्सप्लोर्ड टू ए लार्ज एक्सटेंट. The diversity of animals and the diversity of animal and plant life could never be discussed and studied properly unless arranged in a small kind of system. There are number of type of species diversity. Species diversity. What are these types? Each community has a variety of species. Some which are uncommon, others are common, and others are abundant. There is no community consists of species of equal abundance. The types of species diversity are: number 1, point diversity. Then
we have another, that is alpha diversity. Number 3, gamma diversity. And number 4, we have epsilon diversity. पहले इनको हम थोड़ा बहुत वन बाय वन इसके ऊपर रोशनी डालेंगे. What is gamma diversity? What is point diversity, alpha diversity, gamma diversity and epsilon diversity. With example मैं आपको कोशिश करूँगा आपको समझाने की. जैसे कि आपको पता है point diversity क्या है. This is the diversity on the smallest scale. Smallest scale पे जो diversity है, that is diversity of micro habitat. हम जनरल एग्जाम्पल बाद में देंगे, पहले मैं इनको आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा डेफिनेशन इसकी. फिर अल्फा डाइवर्सिटी जो है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज लोकल डाइवर्सिटी and include variety of organisms occurring in a particular habitat. This is the local diversity and include variety of organisms occurring in a particular habitat. Then we have third one, that is gamma diversity. It is the diversity of large unit such as an island or landscape. एक बड़े आइलैंड में कितनी डाइवर्सिटी है, एक छोटे एरिया में कितनी डाइवर्सिटी है, एक स्मॉलेस्ट स्केल में. पॉइंट मीन स्मॉलेस्ट स्केल, अल्फा मीन्स लोकल में, गामा मीन्स एक लैंडस्केप में, एक एरिया में. देन वी हैव एप्सिलॉन डाइवर्सिटी. It is called a regional diversity and include total diversity of a group of area of the gamma diversity. अब हम एक एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको पढ़ाऊँगा, थोड़ा बहुत कोशिश करूँगा. फॉर एग्जाम्पल हम एक सिंगल प्लांट की बात करेंगे. ठीक है. सिंगल प्लांट जो है, इट इज़ ए यूनिट. This single plant is considered is considered as unit of alpha diversity. Unit of alpha diversity. एक सिंगल प्लांट हम लेते हैं. ठीक, दिस इज सिंगल प्लांट, एक सिंगल प्लांट है. ठीक, ये और एक प्लांट है. इसके आप खुद ब खुद इसकी वैरायटी देख सकते हैं. ये दूसरा प्लांट है. मैं चंद प्लांट्स बनाऊंगा. ठीक है. ये 3 प्लांट्स मैंने 3 किस्म के बनाए. और भी मैं एक प्लांट बनाता हूँ जिसके लीव्स ऐसे आपको मिलेंगे, जैसे कि मेज़ है जिसमें पैरेलल वेनेशन है, इसमें रेटिकुलेट वेनेशन है. तो ये मैंने कुछ प्लांट्स बनाए. अब इसमें हम एक एक्सप्लेन में करना चाहता हूँ, आपको आप तक पहुँचाना चाहता हूँ पॉइंट डाइवर्सिटी, अल्फा डाइवर्सिटी, गामा डाइवर्सिटी, एप्सिलॉन डाइवर्सिटी, यानी कि इनमें क्या वेरिएशंस हैं, इनमें क्या डाइवर्सिटी है, डिफरेंसेस है. ठीक. पॉइंट डाइवर्सिटी, जैसे कि हमें पता है, सिंगल प्लांट में भी कंसिडर एज यूनिट ऑफ अल्फा डाइवर्सिटी. ये एक सिंगल प्लांट है, ये एक सिंगल प्लांट है, ये एक सिंगल प्लांट है. ये इट इज़ कंसिडर्ड एज यूनिट डाइवर्सिटी. ठीक, सॉरी, अल्फा डाइवर्सिटी. अब इन प्लांट्स के 4 किस्म लीव्स हैं. ये इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग. अब हमने लीव्स को पॉइंट आउट किया, लीफ को. अब जो हमने प्लांट के अंदर लीफ को देखा, इट इज़ कॉल्ड ए पॉइंट डाइवर्सिटी. ठीक. अब हम इन सब को एक ग्रुप में लेते हैं. हम इन प्लांट्स को, हम लीफ का तो ले लिया हमने, अब हमने इसको एक ग्रुप में ले लिया. जब हम इनको ग्रुप में लेते हैं, व्हेन वी ग्रुप ऑफ प्लांट्स जो टुगेदर ऑकरिंग इन एन एरिया, देन इट इज़ कॉल्ड ए गामा डाइवर्सिटी. दिस ग्रुप, इट इज़ ए गामा डाइवर्सिटी. तो पहला मैंने आपको बोला, यूनिट single plant may be considered as unit of alpha diversity. ठीक. अब हमने लीफ को ले लिया, इसका लीफ ये है, इसका ऐसा, इसका ऐसा, दैट इज ए पॉइंट डाइवर्सिटी.
देन जब हमने ग्रुप ऑफ प्लांट्स एक एरिया का एक हैबिटेट का ले लिया तो देन इट इज़ कॉल्ड ए कॉमन डाइवर्सिटी। तो इसके बाद बचता जो है वो एप्सिलॉन डाइवर्सिटी है। एप्सिलॉन डाइवर्सिटी जो है इट इज़ द डाइवर्सिटी ऑफ द फॉरेस्ट विद इन विच द प्लांट्स आर लोकेटेड एज एन एरिया ऑफ एप्सिलॉन डाइवर्सिटी। अब ये किस एरिया में रह रहे हैं, किस फॉरेस्ट में रह रहे हैं, दैट्स कॉल्ड एप्सिलॉन। इट इज़ ए मेजर एप्सिलॉन डाइवर्सिटी इज़ ए रीजनल डाइवर्सिटी। इट इंक्लूड टोटल डाइवर्सिटी of a group of area of gamma diversity. So this is about the diversity. India is one of the 12 mega biodiversity countries in the world. The country is divided into 10 biological regions. 10 biological regions. The wide variety of physical features and climate conditions, यानी कि इसका जो है फिज़िकल फीचर्स कैसे हैं, इसका क्लाइमेट कैसा है, तो इसका इकोलॉजिकल हैबिटेट कैसा है, फॉरेस्ट कैसे हैं, ग्रॉसलैंड्स कैसे हैं, रिवर्स कैसे हैं, वेटलैंड्स कैसे हैं, कोस्टल एरिया, मैरीन इकोसिस्टम एंड डेजर्ट्स जो हैं। तो ये जो है ये इंडिया जो है इट इज़ कंसिडर्ड एज मेगा डाइवर्सिटी। तो दिस इज़ अबाउट थोड़ा बहुत मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी के बारे में। तो अब बायोडाइवर्सिटी में डिफरेंट बायोलॉजिस्ट्स, डिफरेंट जोलॉजिस्ट्स, बॉटनिस्ट्स, प्लांट्स और एनिमल्स जो could never be discussed and studied properly जब तक कि इनको हम अरेंज नहीं करेंगे, हम एक किस्म के एक सिस्टम में, काइंड ऑफ सिस्टम में, तो तब तक ये पॉसिबल नहीं है कि हम इनको स्टडी करेंगे। जब हम इनको स्टडी करना है वी हैव ईच एंड एवरी लिविंग फॉर्म सेपरेटली। तो जोलॉजिस्ट्स और